الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آفی فی بدنی اللہم آفی فی فمی اللہم آفی فی بصری لا الہ الا انت. اللہ مجھے میرے بدن کی عافیت دے دے، اللہ مجھے میرے کانوں کی عافیت دے دے، الہی میری آنکھوں کی عافیت دے دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ دعا ہے کرونا سے بچنے کے لیے. آج ہمارا ٹاپک ہے کرونا کیا تھا، کرونا کیا ہے، اس کی ویکسین کیا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ کرونا ہر طرف کیوں ہوتی ہے. تو آج ہمارا بیسک ٹاپک جو ہے ماس میڈیا کا کردار کیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے کیسے دور کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچ سکتے ہیں کرونا سے، اور ویکسین کیا لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے. تو بیسک ماس میڈیا کا کیا کردار ہے اس کے اندر. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کو ہم جو ہے جاری رکھیں گے. تو اس طریقہ سے جو ہے ماس میڈیا کیا ہوتا ہے، وبا کے اندر اس کا جو ہے کیا کردار ہے. تو کووڈ-19 کے اثرات کیا ہے ابھی تک جو ہے، اور وبا میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر اس کا کیا کردار ہے، کیا کہ یہ موافق چیزوں سے جو ہے یہ ہمارا جو ہے تعامل ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی بھی وبا آتی ہے تو وہ جو انتہائی نقصان کرتی ہے. تو ہمارے ملک میں بھی پوری دنیا میں بلکہ خوف و ہراس، دکانیں بند، بازار بند، اور پریشانی، موت کی دیوی، ہر طرف جو ہے موت ہی موت کے بادل منڈلا رہے تھے. ہر بندہ کہتا تھا کہ فلاں مر گیا ہے، فلاں کو نزلہ زکام ہوا، کھانسی بخار ہوا، ہسپتال گئے، ٹیکہ لگایا اور اس کی موت واقع ہو گئی. پوری دنیا میں یہ حالت دیکھ کر ہر بندہ جو ہے نفسیاتی مریض ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے موت کے خوف کے اندر جو ہے مبتلا ہوتے تھے کہ فلاں ڈاکٹر فوت ہو گیا. صفحہ محمد ماتب اسپتالوں کے اندر ایمبولینس پر موت ہی موت، اور ہر وقت یہ جو پرابلم جو ہے تھا، جس کی وجہ سے ٹی وی چینلز کے اندر یہ نیچرلی طور پہ جو ہے ہر وقت جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا کتنے افراد جو ہے 50 لاکھ افراد، 50,000 دنیا میں فوت ہو گیا، اور 50,454 افراد جو ہے پاکستان میں فوت ہو گئے. تو اس طریقے سے ایسا ماحول پیدا ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے خوف و راز پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جو ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا. ماسک پہن کر جو ہے وہ باہر نکلا جاتا تھا، اور سلام دعا کرنے سے بھی لوگ گریز کرتے تھے، اور یہ طبعی فاصلہ، سماجی فاصلہ بھی رکھنے کی ہدایت کی جاتی تھی. اور سوشل میڈیا اس کو بہت زیادہ اجاگر کر رہا تھا. سوشل میڈیا میں کا کردار جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اہم تھا، جس کی وجہ سے یہ ہر وقت یہ پرابلم جو ہے وہ جاری تھا. مالج کو اصل میں یہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاسپٹل میں، کیونکہ میرا لائٹ ہاسپٹل 2 سے تعلق ہے، کہ موتیں کیوں اتنی زیادہ ہو رہی تھی. جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ان کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر چلانا نہیں آتا تھا. بیسیکلی طور پر جو ہمارا سانس کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پریشر اس کے اندر موجود ہے، وہ ایک پھیپھڑے کس حد تک پھیلتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ ریسپریشن جو ہے اس کا عمل کیسے ہوتا ہے. یعنی کہ انسپائریشن جو ہے ایکسپائریشن جو ہے اس کا عمل نیچرلی طور پر ایک پریشر کے ذریعے ہوتا ہے. تو جب ہم مصنوعی طور پر اس کو جو ہے یہ سانس کی جو وینٹیلیٹر پہ لگا دیتے تھے، تو اگر پریشر زیادہ ہو جاتا تھا کیا ہوتا تھا، پھیپھڑا پھٹ جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بندے کی موت واقع ہو جاتی تھی. اگر ہم پریشر لو کر دیتے تھے تو پھیپھڑا سکڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. اس لیے ہزاروں لوگ ہمارے تجربات کی نظر چڑھے، یعنی کہ ہم نے اس پہ ان پہ تجربات کیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسا ایکسپرٹ موجود نہیں تھا جو کہ ہمارے ویکسینیٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر کو چلا سکتا ہے. تو وینٹیلیٹر چلانے کے لیے چند افراد موجود تھے جو کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے. جو اس دوران آتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور اس کے بعد جو بھی آتے تھے وہ صرف تجربات کی نظر ہوتے تھے. اس لیے جو ہے پھیپھڑا پھٹنے سے موت، یا کہ پھیپھڑا کی جو ہے وہ کم ہوا جانے سے جو ہے سکڑ جانے سے موت، دونوں صورتوں میں ہوتی تھی. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسپتال گئے اور وہاں پہ ٹیکہ لگایا ڈاکٹر نے تو بندہ جو فوت ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وینٹیلیٹر چلانے کے لیے جو ہے صلاحیت کسی کے اندر جو ہے بہت کم ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو پریشر اندر رکھا ہے اس کو جاننے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر جو ہے بہت کم ہے. تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے
होने से जो है बहुत ज्यादा लोगों की मौत जो है वाकया होगी। इसी तरीके से कोविड-19 के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से फौज बॉडी को ले जाती थी और उसको अपनी निगरानी में जो है दफन करती थी। और ये फौज जो है इसको ले जाके इसको जो है वो अपनी निगरानी में दफन करती थी। बाल बुरसा को जो है वो लाश जो है वो नहीं मिलती थी, और ये लाश स्टेशन में जो है जब भी उसके हवाले की जाती तो उसको जो है ये डब्बा में बंद करके या एक जो है वो ताबूत में बंद करके उसको जो है वो बुरसा को सिर्फ मुंह दिखाने के लिए जो है वो फौज की निगरानी में उसको भेजा जाता था, और उसके बाद फौरी तौर पे जो है उसको जो है वो दफन कर दिया जाता था। टेक्नोलॉजी को हम तस्लीम करते हैं, ये जदीद टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया इसको जो है मानती है। उस वक्त वैक्सीनेटर भी इसकी इजाजत नहीं हुई थी वैक्सीन, तो अचानक दुनिया में इसने इसको जो है वो इस वबा ने ऐसा हमला किया जिसकी वजह से तबाही ही तबाही जो है वो हर तरफ हो गई। तो कुदरती जो है वो कुव्वत मदाफत भी इंसान के अंदर जो है कुछ लोगों में मौजूद थी, लेकिन जो है इस ताकत की वजह से भी हमारे निज़ाम को चलाने में जो है कोई अहम किरदार नहीं अदा कर सका। तो खास तौर पे हमारी टेक्नोलॉजी और मीडिया जो है इस दौर में जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से तलबा को चाहिए कि वो जो है वो सोशल मीडिया के किरदार को तस्लीम करें कि हमारे जितने भी जो सोशल मीडिया का किरदार है ऐसी जगहों पे जो वबा की सूरत में या और दीगर सूरत में जो है उसमें जो है ये तलबा भी उसमें बड़े शामिल थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ जो है ऐसी टेक्नोलॉजी को भी जाने, जिसकी वजह से हम जो है खौफ और राज की बजाय जो है लोगों को मोटिवेशन के तौर पे जो है लोगों को खेलने की तरफ और दीगर जो है चीज़ों की तरफ भी लाने में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते थे। और इसी तरीके से खुराक और दीगर चीज़ों में जो है वो असल में आवाम जो है 90% जो है वो अभी तक उसके मैंने बहुत से ऐसे अपराध देखे हैं तो जो नफ्सियाती तौर पे उस वक्त से अभी तक जो है नफ्सियात का जो है वो उन नफ्सियाती अमराज का जो है वो शिकार है। उस वक्त से उनके अंदर खौफ और हरास जो है अभी तक उनके अंदर जारी है, और बहुत से लोग जो है वो कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो है अभी तक जो है उस खौफ के अंदर जो है मुब्तला है कि अभी जो है मुझे कुछ हो गया है और मेरे असाब कमजोर हो गया है, मेरे मैदा को खराब हो गया है। और मैदा जो है इस तरीके से जो है हर बंदा जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद जो है कोई ना कोई इस किस्म की शिकायत जो है वो करता है। तो मैंने शुरू में जब मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते तो मैंने कहा जिसने आपको टीका लगाया उससे बात करें, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये तो गलत बात है भाई, मुझे अल्लाह ने मौलिज बनाया है तो मैं इसका जो है इसका तोड़ कोई ना कोई निकालूं ताकि मरीजों की मैं हेल्प तो कर सकूं ना। तो इसलिए आज का ये टॉपिक जो है हम उसको जो है वो जारी रखेंगे। तो उसमें जो है मैंने हेल्प करने के लिए जो जितनी भी कुव्वत मदाफत में इजाफा करने वाली अद्वियात थी उनको मैंने मरीजों को बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है कुलवंजी हो गई, जैतून का तेल हो गया, और वो हम जो है उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें मैं मरीजों को बताता हूँ, जिसकी वजह से उसका खौफ और हरास और उसके अंदर जो ये तब्दीलियाँ आ चुकी है सोशल मीडिया ने जितनी भी इसके अंदर जो तब्दीलियाँ पैदा की थी उसकी वजह से जो तब्दीली आई है हम उनको दूर करने के लिए जो है वो पूरी कोशिश जो है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है अवाम के अंदर जो है आगाही यानी कि उसमें जो है एक आगाही पैदा करने का जो है वो अहम किरदार है, जिसकी वजह से अवाम जो है ये जान सकती है कि इसके अंदर जो है ये जो है कैसे जो है ये प्रॉब्लम जो है पैदा हो सकती है। तो जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है हम जो है जब टीका लगवाते हैं उसके बाद वैक्सीन आजाद हो गई, लोग जो है फाइजर का टीका लगवाना पसंद करते थे, वहाँ इतना ज़्यादा रश हो जाता था कि बजाय जो है वो जिसको मतलब होता था कोविड-19 अभी भी टेस्ट होता है नेज़ल के जरिए जो नाक के जरिए जो है उसका स्वैब लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो फिर भी जो है वो पॉजिटिव लेके जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास और मेरे पास भी आ जाते हैं। जो मेरे अभी दोस्त एक डॉक्टर एक दोस्त है हमारे हकीम मुनव्वर साहब, तो वो उसको उनका जो है वो कोविड पॉजिटिव आ गया और वो रिपोर्ट लेके जो है वो हाथ में उठाए हुए जो है बगैर मास्क के जो है वो मुख्तलिफ कमरों में चक्कर लगा रहे, मेरे पास भी वो आ गए। तो मैं आपसे मिलना चाहता था और आँख में उन्होंने हाथ भी मिलाया और जो है वो जफ्फी भी डाली। तो इस तरीके से जो है ये जितने भी जो है कोविड-19 के मरीज हैं उनको बड़ी एहतियात की अभी भी जरूरत है
कि वो इसको जब आपका पॉजिटिव आ गया तो आप इसको एहतियात करें। हमारी डॉक्टर साहबा का भी पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने जो है अपने आप को अपने घर के अंदर जो है वो रोक लिया एक कमरे के अंदर, और वहां पे उसको खाना और उसकी जो है पानी का इंतजाम किया। जब 15-20 दिन गुजर गए और उनको जो फाका हो गया, इसके बाद जो है नजला जुकाम खांसी बुखार से फाका हो गया, तो उसके बाद वो उस कमरे से बाहर आई और उनका टेस्ट दोबारा करवाया गया तो नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से कोविड-19 का जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो खुदा का खौफ करे कि किसी दोस्त से ना मिले, बल्कि जो है एक साइड पे अपने आप को अलहदा कर ले। तो इसकी वजह से जो है टीका लगवाने से जो भी मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं उसको जो है वो दूर करने की कोशिश जो है वो की जाए। तो इसके बाद जो है बहुत से लोग जो है मुझे हमारे जो है वो उस वक्त से अभी तक दीनी मरीज है, वो अभी तक उनको मौत का खौफ जो है कि जैसे कि उनके सामने किसी का वालिद फौत हुआ, किसी का भाई फौत हुआ, किसी की बहन फौत हुई, और किसी का मामू फौत हुआ, किसी का दादा फौत हुआ। और मेरे बहुत से डॉक्टर साहब जो है भाई जो है वो मेरे डॉक्टर जो मेरे भाई हैं, जो बहुत से दोस्त है, वो फौत उस दौरान हुए। तो इस तरीके से बहुत से लोगों के ऊपर अभी जो है वो उनकी दीनी टेंशन जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है खौफ और रात के अंदर रहते हैं। तो हम ऐसे मसाइल का हल भी जो है वो जानेंगे कि हम जो है वो कैसे दुआओं की सूरत में और कैसे हम इसको जो है वो दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है सोशल मीडिया का जो किरदार है उसको समझ लें कि सोशल मीडिया को चाहिए कि वो पॉजिटिव पहलू को जो है वो उजागर करे। यानी कि हर वक्त जो है वो नेगेटिव पहलू को जब कोई सोशल मीडिया उजागर करता है, कैसी खबरें देता है कि फला जगह फौतगी हुई, फला जगह फौतगी हुई, फला फौतगी हुई, तो वो एक खौफो हरास हो जाता है। ऐसी जो है ये ट्यूबर जो है मतलब अफवाहें जो है ये भी इंतहाई नुकसान पहुंचाती है कि बहुत से लोगों ने अजीब तरीके से जो है वो कहना शुरू कर दिया कि जो है इस तरीके से जो फौत हो रहा है, इस तरीके से मर रहा है। तो ये जो है असल ट्यूमर जो है ये भी नुकसानदेह है। तो आप लोग जब तक अपनी आंखों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया है कि जब तक कोई बंदा जो है किसी बात की तस्दीक ना कर ले उस वक्त तक उस पर यकीन ना करे। तो इस तरीके से जो है वो कोविड-19 का जितना भी जो है प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया ने इसको जितना भी उजागर किया है वो इतना ज्यादा जो है वो नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने उसके अंदर जो जितना भी किरदार अदा किया उसको इतना ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया, जिसकी वजह से जो है हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा खौफ और राहत जो है पैदा हो गया। तो ये जो है असल में हम इसको जो है वो कैसे इससे निजात हासिल कर सकते हैं, इसको जो है वो जारी रखेंगे। तो अभी थोड़ी सी इसके बारे में और बात करते हैं। तो वबाई अमराज के मतलब जो है कुछ गजाई और कुछ परहेज जो है वो भी सोशल मीडिया को बताना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बताया। तो उसके बारे में मेरी जो बात है वो मैं आज करना चाहता हूँ। वबाई अरसा में हल्की सादा और दूध हजम गजा जो है वो लेनी चाहिए थी। तो ऐसी चीजों के बारे में जो है मीडिया ने नहीं बताया। सिर्फ सोशल डिस्टेंस और जो है हाथना बनाना और जो है दूर रहना, मास्क पहना, इसके अलावा गजा और परहेज तो जो है वो बहुत जरूरी है। हकीम जो है जब तक गजा और परहेज के मतलब नहीं बताता उस वक्त तक जो है ये उसका इलाज मुकम्मल नहीं होता। जब से इंसान जो है इसको खूबसूरत की तलाश में है तो इंसान हमेशा जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आजाद करने के लिए जो है वो लगा रहता है। तो ये जो है असल में कोविड-19 जो है इसके बारे में जो है बहुत सी ऐसी देसी अद्वियात है जिसके अंदर जो है हम इसको जो है वो उसमें सना मक्खी बहुत ज़्यादा उन दिनों में चली है कि सना मक्खी का कावा पिए, सना मक्खी का कावा पिए, तो जिसकी वजह से जो है ये उससे जो है फायदा हो जाता है। सना मक्खी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, कुलवंजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है। जब इन पे भी अमल किया जाए तो इससे जो है कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। जैसे कि वैक्सीन भी हमारी कुव्वत मुदाफ़त में बेसिकली तौर पर वैक्सीन का काम क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। जब भी हम कोई भी किसी चीज़ की वैक्सीन लगवाते हैं उसका काम यही होता है कि वो जो है कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करने का जो है वो बायस बनते हैं। जल्दी कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का जो है बायस बनते हैं। लेकिन जो है हमारे अंदर जो है जितनी भी चीज़ें कलवंजी मैंने अभी बात की, जैतून का तेल की मैं बाद में बात करूंगा, तो इस तरीके से कुव्वत मुदाफ़त में और सलाम मक्की की
ये भी जो है क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करने का बायस बनती है। मतलब कोविड-19 का ये हल नहीं है, बल्कि ग़िज़ाओं से जब हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा होगी तो ये जो वायरस हम पर अटैक नहीं करेगा। जिन्हीं के अंदर जो है क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो बाहरी सूरत में भी आ गई है, तो उसके अंदर वो जो है वो वायरस जो है वो काम उसके अंदर नहीं करता, तो जिसकी वजह से वो उससे महफूज रहता है। ये टीका लगवाने से या जितनी भी ग़िज़ाई अद्वियात खाने से या वो देसी अद्वियात खाने से हम जो है वो जब हो जाए तो उसको हम मुख्तलिफ अद्वियात से क्योर भी कर सकते हैं। हमारी बहुत सी ऐसी अद्वियात है जिनसे हम जो है सिम्पटम देकर उसको क्योर कर सकते हैं। तो जब तक ना हो उसको हम क़ुव्वत मदाफ़त अभी इजाफा करके हम जो है वो बड़ी आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। या इससे आप एक शब रोज़ आसान और जो है यानी कि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी को बसर भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ वसाइल और मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। यानी कि जो है जो खौफ और रात जो है कोविड-19 का अभी के दिन तक लोगों के अंदर मौजूद है, तो उसको हम दूर कर सकते हैं कि मुझे जो है टीका लगाने से, वैक्सीन लगाने से ये मसला जो है वो हो गया है। तो इस तरह से जो है जितने भी नए-नए अमराज पिछले दहाई के अंदर जो है वो वाक़या हुए हैं, तो जिसमें ताउन और इन्फ्लुएंजा, एड्स वगैरह से जो है बहुत ज़्यादा हलाकत हुई। इसी तरीके से कोविड-19 से जो है वो और सारे वायरस से भी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई और कोविड-19 से भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई। तो जिसने जो है वो मौत का बिगल जो है वो बहुत ज़्यादा बजा दिया, जैसे कि इसराइल अलैहिस्सलाम जो है वो बुझाएंगे क़यामत के दिन। तो उस वक़्त जो है ये क़यामत सुग़रा थी, यानी कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे जो है क़यामत जो है ये आ गई है। तो बिल्कुल जैसे क़यामत आ गई है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है स्टार्ट हुआ था उस वक़्त जो है ये बड़ा प्रॉब्लम जो है उस वक़्त जो है स्टार्ट हुआ था, तो ये बड़ा प्रॉब्लम जो है उस तो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इधर उतरा दोबारा अरे वो तेरा तो सुन के बैठ जाओ प्लीज, सही कर दो। इस तरह से जो है कोविड-19 का जो है बहुत ज़्यादा जो है मसला जो है बन गया। तो इंसान ने जो है फितरी तौर पे जो है तरक्की करते करते जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फितरती तौर पे जब उस पर अमल किया, तो इसके अंदर जो है यार ऊपर आ देना कुछ बात बस ठीक हो गया। तो इस तरीके से इंसान के अंदर 2 मिनट से बैठ बस 2 मिनट। तो इस तरीके से जो है माकूस जो है इसके अंदर जो है फितरत के लिहाज से जो है मुकम्मल तौर पे जो है ताकतवर कायनात के अंदर जो है तमाम अलूम व फ़नून के लवाज़मात और हालात फितरत के अंदर जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। कायनात की सबसे अफजल तहकीक जो है वो हज़रत इंसान है। जैसे कि खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कि अल्लाह ताला ने जब बेहतरीन चीज़ बना रहे थे उस वक्त इंसान को तख्लीक किया, तो इसकी बका और क़याम के लिए जो है फितरी असूल की पासदारी करने के लिए जो हमें पानी, मट्टी और हवा को जो है वो नवाजा है, और जिसके वजह से जो है आग भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखती है। तो इसके बाद जो है हमारा मिजाज बनाया, ये सब जो है वो एक तवाज़ुन के साथ कायम किया। तो ये बेहतरीन इजहार है मिजाज का तवाज़ुन। अभी हम पिछले दिनों पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो तवाज़ुन को कायम रखने के लिए इंसानी बदन के अंदर जो है दफ़ाई निज़ाम बनाया। दफ़ाई निज़ाम को हम क़ुव्वत मदाफ़त कहते हैं, यानी कि जो भी मर्ज़ हमारे जिस्म के अंदर जो है वो आने के लिए हो, तो इनेटम इम्यूनिटी जो है ये कुदरती इम्यूनिटी जो है वो पैदा होती है, जो कि बच्चे के पैदाइश के वक्त जो है माँ से जो है बच्चा जो है वो माँ बाप से हासिल करता है। और इसी तरीके से जो है सेहतमंद जिंदगी के बेहतरीन अज़हार को मिजाज का तावन कायम करने के लिए इंसानी बदन में जो है क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम बनाया। मजबूत रखने के लिए अमराज के हमलों को बदल से जो है महफूज रखा। गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की के तवाज़ुन का तनासब से जो है वो बदन को सेहतमंद और तवानान बनाया। जबकि कहीं मिजाज में बगाड़ और अखलाक के में तकरीबन जो है वो अफराद या कमी जब हो गई, तो उसकी वजह से भी जो है वो मुख्तलिफ इंसान का जो है दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर हो गया और बीमारियों ने जो है उसके ऊपर सर उठा लिया।
माहिरीन तिब जो है तिब नबवी के मुतल्लिका मुआलिजीन ये जानते हैं कि ज़्यादातर अमराज सर्दी और खुश्की बढ़ जाने की वजह से होते हैं। यही वजह है कि बूढ़े अफराद के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमराज पैदा हो जाते हैं। यानी कि सर्दी जो है, जो बंदा ठंडा होना शुरू हो जाता है, बेसिकली तौर पर ठंडक मौत है, और गर्मी जो है, हरारत जो है, वो क्या जिंदगी है। तो मतलब जब बंदा मर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो ठंडक बेसिकली मौत है। तो इस दिक्कत से 40 साल के बाद जो है बदन इंसानी के अंदर जो है वो सर्दी और खुश्की जो है वो गालिब आने लगती है। जदीद मेडिकल साइंस ने ये साबित किया है कि मतलूबा ऑक्सीजन की रसद जो है उसके जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसके जो खुलियात है वो मरने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और शुगर के समेत तमाम मोहलिक और खतरनाक अमराज जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा होते हैं। कुव्वत मदाफत में इजाफे के लिए जो है वो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि खून में ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मकदार में होगी उतनी कुव्वत मदाफत जो है वो बेहतर होगी, और कुव्वत मदाफत में इजाफा करने के लिए हमें जो है वो गजाई अद्वियाती जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए जो है वो जितनी भी हमने कोविड-19 की बात की, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो रोजमर्रा मामूलात को बेहतर करें, वर्जिश को बेहतर करें, आपने जो है वो एक शेड्यूल बनाए जिसकी वजह से हम जो है कुव्वत मदाफत में इजाफा कर सकें। इंसानी बदन में खून गर्दिश करने से जो है वो मतवाजन और बेहतरीन गज़ा जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पहुंचती है। खून असल में जो है हमारी तगजिया करता है, तमाम सेल्स का जितने भी जहाँ भी जो है वो जरूरत होती है वो उसको लेके जाता है जी। और इसके साथ सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब सूरज निकल रहा होता है उसमें विटामिन डी होती है, और जब सूरज निकल रहा होता है तो रहने एंजाइम जो है उसके जिस्म से खारिज होता है, जो कि खुराक को हजम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से नींद की कमी से जो है इंसान के अंदर जो है बहुत ज्यादा अमराज पैदा होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ताज़ा हवा, बदन से पसीना आना जो है ये बदन बहुत ही मुफीद है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये अल्लाह के पाकिस्तान में रखे हुए हैं। मैं श्रीलंका रह के आया हूँ, वहां पे अंग्रेज, रशिया से और यूके से और अमेरिका से लोग आते हैं वहां पे, जहाँ सारा साल बर्फबारी और ये जो जितने भी जो है ये हमारे वेस्टर्न कंट्री है वहां से लोग आते हैं, तो वो बीच पे आकर लेटते हैं, अपने जिस्म को जो है वो हीट दिलवाते हैं। समुद्र के किनारे कोलंबो के अंदर वो नंगे होकर लेटते हैं औरतें और मर्द, और वो अपने जिस्म को हरारत दिलाते हैं। तो अल्लाह की इतनी बड़ी एहसान है कि हमें जो है वो पसीना आ रहा है, हमारे जिस्म से जो है फालतू रतूबात निकल रही है। तो ये हम पे अल्लाह का एहसान है कि हम करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च के हमें जो है किसी और मुल्क में नहीं जाना पड़ता। तो हम फिर भी क्या करते हैं जी, अपने आप को कमजोर करने के लिए, हड्डियों को कमजोर करने के लिए, जिस्म को कमजोर करने के लिए सारा दिन क्या करते हैं जी, एसी में बैठते हैं जी। जब एसी मौजूद नहीं था तो क्या था जी, हमारे जिस्म में वो ताकत और तवानाई जो है मौजूद थी। तो नींद भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, कुव्वत मदाफत में इजाफा करती है। अगर 8 से जो है वो 10 घंटे तक नींद इंसान ले तो उसका दिमाग सुबह फ्रेश हो जाता है, असाब मजबूत हो जाते हैं, और वो अपनी कुछ कारकर्दगी जो बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कुव्वत मदाफत में भी इजाफा हो जाता है, और वो जो उसके अंदर जो अमराज के मुसल्लत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मतवाजन और तवानाई भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो भी इंसानी बदन के लिए लाजमी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हल्की और सादा ग़िज़ाएँ और दूध हजम ग़िज़ाएँ तवानाई में इजाफा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा ग़िज़ा इस्तेमाल की, तो वही अगर हम मतलब रायता जो है जिसमें कद्दू है, कद्दू शरीफ हम उसको इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, बहुत ही मुफीद है। तो इसी तरीके से जैतून का तेल, जिसको हम आगे चल के इसके जिक्र करें, कलंजी का जिक्र करेंगे, ये सारा जो है ये हमारे लिए बेहतरीन चीजें हैं। और ये जो है तलबीजा जो है ये भी बहुत अच्छी चीज है, जिसको आप जो है 10 दाने जो है वो भिगो के रात को बादाम के और इस तरीके से दूसरी चीजों को जो है शहद के साथ सुबह इस्तेमाल कर लें, तो आपको जो है जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई जो है बाहर है। सादा जो है बहुत ही मुफीद है, जबकि हमारे जो पिज़्ज़ा और ये दीगर शवारमे और ये जो बर्गर और इस तरह से दीगर जो है वो चीज़ें जो है वो इंतहाई हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। ये हमारा पेट तो भर देते हैं, लेकिन जो इसमें निज़ाम को जो है वो खराब कर देते हैं, और इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो देर हजम जो है वो होते हैं, और बादी अशिया का इस्तेमाल भी जो हमारे जिस्म में
दुष्ट ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारे जिस्म पर नुकसानदेह होता है। निज़ाम हज़म यानी कि मेटाबॉलिज्म मुतहर्रिक और मजबूत होने के लिए जो है वो सेहतमंद होने के लिए जो है कब्ज़ का ना होना और जिस्म का जो है ताकत और तवाना का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो है हजम से जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर जो है वो जिस्म मजबूत और क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा और कब्ज़ जो है वो बहुत से बीमारियों की यानी कि 72 बीमारियों से भी ज़्यादा का बायस बनती है। इस्लाम में सफाई का जो है वो बहुत ज़्यादा दर्ज दिया गया है। सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया गया है। तो हमें साफ पानी पीना चाहिए और पानी के साथ साथ जो है हमें सोमत सलवात का भी जो है पाबंद होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज जो है वुजू करके चेहरे के खुलियात को ताज़ा ऑक्सीजन मुहैया करती है, जिसकी वजह से जो है वो इस्लाम में जो है पकीज़ा और साफ रहने का जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है। बदन का मसाम खुलने से बदन इंसानी के अंदर जो ताज़ा ऑक्सीजन चली जाती है। हाथों को वक्फे वक्फे से धोना जो है कोरोना के लिए जो है बहुत मुफीद है और इसी तरीके से जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जो है कोरोना के लिए बहुत मुफीद है। कोरोना असल में जो वायरस है वो बेसिकली तौर पर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह होता है और आपस में जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके हाथ को लगा हुआ है कोरोना तो वो दूसरे हाथ को जाके जो है और उसके बाद गले में चला जाता है, नसलों में चला जाता है, सांस की नाली में चला जाता है और दिमाग की झिल्ली को जाकर मुतासर करके जो है आपके सांस को रोक देता है, जिसकी वजह से आप जो है वो फौरी तौर पर जो है मौत की तरफ जो है आपका रुझान जो है हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी किस्म का जो है सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करें। तो तमाम सैनिटाइजर के अंदर क्योंकि अल्कोहल होता है तो इसलिए इसके अलावा हमें जो है वो बाद मजहबी हल्के इसको मना करते हैं, लेकिन हमें जो इसकी जगह पे और भी हमारे पास जो है वो चीज़ें मौजूद है, जैसे कि हमारे पास जो है नीम है, नीम का पानी हम अगर इस्तेमाल करें अल्कोहल की बजाय तो ये भी हमारे लिए जो है वो बहुत मुफीद है। इसी तरीके से जो है अगर आप इसको सैनिटाइजर को अल्कोहल को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप डिटोल का इस्तेमाल कर लें, तो वो भी जो है एंटीसेप्टिक है और इसी तरीके हल्दी का इस्तेमाल भी एंटीसेप्टिक लोशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल ही इसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे लिए जो है आप देसी इजाज़त से भी जो है वो सैनिटाइजर बना सकते हैं, जिसमें जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला जो हमारा जो है ये सैनिटाइजर ही है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जिसको मैं रोगनी शफा का नाम मैंने दिया हुआ है। तो 7 पुदीना 7 अजवैन और कपूर ये मैं मिला के जो है इसको रखा हुआ है और मैं यही सैनिटाइजर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही मुफीद है। तो ये जो है रोगनी शफा को लगा लें किसी जगह पे भी तो उस वक्त फौरी तौर पे आपको जो है ये सैनिटाइज भी हो जाएगा और आपको शफा भी मिल जाएगी और इस तरीके से आप जो है किसी चीज़ में महफूज भी हो जाएंगे। तो रोगनी शफा जो है बेसिकली अमरदारे के तौर पे मिलता है और इसी तरीके से जो है कुलजम के तौर पर भी जो है दस्तयाब होता है। तो ये बेसिकली तौर पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप इसको जो है बतौर सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है साबुन, सादा साबुन जो है अब कपड़े धोने वाला साबुन उसके अंदर पानी डाल ले थोड़ा सा तो ये भी जबरदस्त किस्म का आपका सैनिटाइजर जो है वो बन जाता है। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे महलूल से हाथ धोने से जो है वो तकरीबन आप जो है काफी हद तक वायरस से जो है बच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जरासीम करीब नहीं आते, तो इसी चंद कतरे जो है पानी में मिलाकर जो है वो दरवाजों पर और ऐसी जगहों पर छिड़कने से जो है यानी कि कुलजम के या के अभी मैंने आपको बताया कि अमरदारा भी इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है रोगरे जो है वो अजवैन होता है, 7 पुदीना होता है, 7 अजवैन होता है और जिसके साथ कपूर होता है। तो उसको मिला के जो है हम ये रोगन की सूरत जो है वो एक तेल की सूरत तैयार कर लेते हैं, एक डब्बे में डाल लें, एक बोतल में डाल लें, तो जरासीम कुछ जो है आपकी बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। तो हमें जो है कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो जिसकी वजह से हम जो हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा हो सकता है और हम जो है कोविड-19 से और दीगर जो है जितनी भी वबा है उनसे बच सकते हैं। तो जिसमें खजूर सबसे जो है वो बेहतरीन चीज़ है, ये क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करती है और तिब्बे नबवी में जो है इसका बाकायदा इस्तेमाल जो है अजवा खजूर का बहुत ही मुफीद करार दिया गया है। तो अजवा खजूर जो है वो बड़ी मुफीद है। इस पे हमारे डॉक्टर हकीम मुमताज़ साहब का काम है NIH के अंदर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद के अंदर
आप उनके पेपर भी पढ़ सकते हैं हकीम मुमताज के। तो ये जो है वो अजवा खजूर के मतलब जितनी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की वो 100% उन्होंने सही साबित की है। ये दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है, दिल को भी ताकत देता है, सांस की बहाल के अंदर भी जो है वो अजवा खजूर जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने जो है ये रैट के ऊपर काम किया है। अजवा खजूर उनको दे के जो उनके दिल का मुआयना 2 दफा किया है और उसके बाद उनके दिल की धड़कन को भी नोट किया है। इस तरह से अजवा खजूर की गिटक गुठली के ऊपर भी हकीम मुमताज साहब का बहुत ज्यादा काम है। तो आप लोग जो है खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब उनके आर्टिकल जो है ये बच्चों को पढ़ाएं और उसमें जो है बच्चों को फायदा दें। उनके जो है ना ये जितने भी आर्टिकल नेचुरल मेडिसिन के ऊपर है और हमारा वहाँ पे जो है बाकायदा हमारे जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टिप का जो है वहाँ बगीचा है। तो बच्चों को वहाँ विजिट करवाएं, जो भी रिसर्चर है आपकी जो है तो उनको जब विजिट करवाएंगे तो उनका जो है वो नॉलेज में मजीद इजाफा होगा। तो NIH जो है वो हर्बल मेडिसिन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है हर्बल का शोबा जो है वहाँ पे मौजूद है। तो डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एमफिल और PhD के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे विजिट करवाएं और अपने बाग को दिखाएं, जो हमारा बगीचा है वहाँ पे प्लांट्स जो है वो हम जो भी वहाँ पे जैतून और इस तरह के दिग्गज चीजें जो है वो हम वहाँ पे उगा रहे हैं तो बड़ी मुफीद है। तो शहद जो है वो शफाए कुल्ली है। तो शहद का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही मुफीद है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से हकीम जो है शहद को मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। छोटी मक्खी का शहद जो है वो कुव्वत मदाफत में भी इजाफा करता है, जिस्म को ताकत देता है, सांस को ताकत देता है और कुव्वत मदाफत में बहुत ही ज्यादा इजाफा करता है। बदन के अंदर जो है वो कुव्वत पैदा करता है। मैं शहद को जो है ये दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त शाम को 4 बजे या सुबह 10 बजे रिकमेंड करता हूँ। 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच जो है जैतून का तेल और 2 चम्मच जो है ये बूढ़े लोगों को खास तौर पर 40 साल से ऊपर या मेरे जैसे जो 60 साल से ऊपर जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए जो बहुत मुफीद है। तो जितने भी फौजी रिटायर हुए हैं उनको जो मैं लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ शहद जो है। कलवंजी कलवंजी जो है ये इसको काला दाना भी कहते हैं। तो हदीस मुबारक के अंदर जो है दवाई में शफा के अफादियत को मद्देनजर रख के जो है वो कलवंजी के मिजाज को बहुत ज्यादा जो है ये खुश्की और सर्दी जो है वो जिस्म के अंदर पैदा करती है। तो ये बदन को तहरीक दे के जो है कुव्वत मदाफत में इजाफा करती है। नहार मुँह जो है इसका जो है वो 3 से 10 ग्राम लेना जो है ये बहुत ही मुफीद है। इसको काला दाना भी कहते हैं। इसको जो है वो थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा इसकी जो है वो तलखी महसूस हो तो चीनी थोड़ी सी इसके बाद गुड़ या शक्कर मिला के जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, या इसके साथ काली जीरी या सफेद जीरा जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ। ये बड़ी मुफीद चीज़ है सुबह नहार इस्तेमाल करने के लिए। तो ये भी कुव्वत मदाफत में इजाफा करती है। जैतून का पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। जैतून हम जो चंद दिन पहले भी इसका जो बहुत ज्यादा जिक्र कर चुके हैं। आप लोग ने जैतून को जानते हैं, खाने के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें खाना पका सकते हैं और ये बहुत ही मुफीद है। और सालन में डाल के किसी मजरूब के साथ भी इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। बादाम लोगन जो है ये जो है कब्ज शाह है और बहुत ही मुफीद है। तो ये भी कुव्वत मदाफत में इजाफा करता है और इसी तरीके से बलगम को निकालने में जो बहस बहुत अहम किरदार अदा करता है। और खास तौर पे जो कोविड-19 के जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे पास उनको मैं जो है रोगने बादाम का ज्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ, सपिस्ता का इस्तेमाल करवाता हूँ और इसके बाद दुशानदा का इस्तेमाल करवाता हूँ। तो हमारे भी जो है वो कृषि लेबोरेटरी ने जो है वो एक पैकेट बनाया हुआ था उस वक्त, वो भी मैंने मंगवाया था। बहुत ही उसके अंदर जो है मुफीद चीजें हैं, पानी भी उसके अंदर बड़ा मुफीद है। तो आप उसको भी मंगवा के मरीजों को इस्तेमाल करवाएं। तो रोजमर्रा खुराक के अंदर जो है हमें बहुत सी जो है वो बेहतरी की जो है वो जरूरत है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है ये नींबू में ज्यादा होती है। नींबू जो है बेसिकली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जितने भी तुर्श फल है ये हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफत में इजाफा करते हैं। स्कर्वी के अंदर और जो है वो बहुत मुफीद है। तो जितने भी जो है ये किन्नू है, मौसमी है, अभी तो नहीं दस्तियाब लेकिन हमारे लिए जो है बहुत मुफीद है। इसी तरीके से जो है तरकारियों के अंदर खीरा, मूली और जो है गाजर बहुत मुफीद है। सिरका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बतौर गजा भी इस्तेमाल करवाया है और बतौर दवा भी इस्तेमाल करवाया है। तो सेब का सिरका, अंगूरी सिरका जो है ये खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, इससे जो है वो जिगर के अमराज भी बेहतर होते हैं और जिस्म की कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है। और इस किस्म की जितनी भी वबाएं आती है जैसे कोविड की वबा
और जितनी भी वबाएं आती है उनको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और हम जो है वो अपनी जिंदगी में इजाफा कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम जो है बहुत ज्यादा जो है बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो है वो पानी मिलाकर पीना जो है बड़ा मुफीद है। इसको सालवी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फलों का इस्तेमाल जो है आजकल आम बड़ा बहुत जबरदस्त है जी। और उसके बाद खुबानी बहुत जबरदस्त है जी। और आड़ू बहुत जबरदस्त है आजकल के दौर में। और ये जो है बहुत ही जो चीजें जो है जो, और उसके बाद जो है फालसा आया है, इमली आलू बुखारे का शरबत, और उसके बाद जो ये सारी चीजें जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है बहुत ज्यादा मुफीद है। तो इसी तरीके से जो है हमारे जिस्म के दफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए जितने भी फल जो है वो भी बहुत मुफीद है। और काली मिर्च भी कुव्वत मदाफत में इजाफा करती है और बहुत ही मुफीद है। काले नमक का इस्तेमाल जो है वो हस्ब जायका बहुत मुफीद है। देसी मुर्गी की यखनी जो है, अंडा और शोरबा जो है, चपाती के इस्तेमाल करने से भी हमारे जिस्म में कुव्वत और ताकत जो है वो आती है, जिसकी वजह से हम जो है वो इस किस्म की जितनी भी वबाएं आई है उनसे हम बच सकते हैं। कोरोना के इलाज के लिए जो है मुआवन कुदरती तौर पर जो है हमारे अंदर जो है वो गले के खराश को दूर करने के लिए, वर्म को दूर करने के लिए पानी में नमक और शहद मिला के इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। गले की सोजिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमेशा पानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। वक्फे वक्त से पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सांस की तंगी की सूरत में इलायची बड़ी बड़ी इलायची जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें मुलट्ठी मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी इलायची, दालचीनी का कहवा, लौंग के साथ, अदरक के साथ जलवतरी का कहवा जो है वो सांस को खोलता भी है और इसमें जो है बहुत ही मुफीद है। और अदरक का कहवा और जलवतरी का कहवा भी इसके लिए बहुत मुफीद है। इसमें हस्ब जरूरत जो है शहद मिलाएं, जिसकी वजह से आपको जो है फेफड़ों के अंदर जो है ये वर्म से निजात मिल जाएगी और आपका सांस बहाल हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जो है मुफीद है, जिसमें जो है जुशांदे का इस्तेमाल अभी मैंने बात की, जिसमें बही दाना, पिस्ता, अनाब जो है ये और शरबत बनफशा का इस्तेमाल, ये जब हो जाए तो उसमें आप जो है इसको इस्तेमाल करें तो बुखार भी उतर जाएगा इससे, शरबत बनफशा के इस्तेमाल से, और आपकी सांस भी बहाल हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है छाती और कंधों के दरमियान कुछ के अंदर जो है कचराइल का इस्तेमाल करें। करूते आर्द कृष्णा, करूती आर्द कृष्णा मेरे दोस्त जानते, बहुत ही मुफीद है, बाम से भी ज्यादा। तो ये मैंने जो है इसको कोविड-19 का जो बेहतरीन हल करार दिया है। तो जिसकी वजह से जो है करूते आर्द कृष्णा जो है वो आप छाती में मालिश करवाएं। और अजवैन जो है इसका जो है वो मिर्च शाह के साथ इस्तेमाल करवाने से हमारा खून पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस की बहाली होती है और पूरे जिस्म में जो है पूरे जो है वो जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा चली जाती है। इसी तरीके से मैं जितने भी जो कोविड-19 से पहले और बाद के अंदर जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है ये असर हुआ है जी, टीके का असर हुआ है, उनको स्पेशली तौर पे मैं जो है मालिश की हिदायत करता हूँ। बेशक सादा तेल से मालिश करें, देसी घी से मालिश करें, जैतून के तेल की मालिश करें, तो जिस्म को जब मालिश की जाती है जिस्म का मसाम खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हरारत गरीजी के अंदर जो है उनको इजाफा हो जाता है। और विटामिन डी का इस्तेमाल जो है सूरज की रोशनी सुबह चढ़ते हुए बहुत ही मुफीद है। तो हमें जो कुछ परहेज भी करना चाहिए जी, हमें जो है बड़े गोश्त, चावल, मशरूबात, खास तौर पे कोका कोला, पेप्सी कोला से परहेज करना चाहिए। और इसके बाद जो है हमें जो है वो चिकनी और मिठाइयों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए। तो इसका जो है वो हम जितने भी हमारे पास जो है वो ज़हनी मरीज आते हैं तो उनको जो है ये अभी मैंने जो दुआ पढ़ी है वो उनको हम हदायत करते हैं कि आप इस दुआ को पढ़े तो ज़हनी अमराज से जो है हम बच सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है ये अल्लाहुम्मा आफ़ी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफ़ी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, ये बार बार पढ़े तो उससे उसका ज़हनी जो है वो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो अपने आप को क्या है असल में बेसिकली तौर पर अपने बदन की अफियत, अपने कानों की अफियत, अपने आंखों की अफियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो रात को जो है एक मेरे पास किडनी ट्रांसप्लांट का एक पेशेंट है, वो किडनी ट्रांसप्लांट करा के आया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं भाई।
एक भी नेमत छीन जाए तो फिर आपको पता चलेगा आंखें कितनी बड़ी नेमत है, कान कितनी बड़ी नेमत है। आज कानों का एक मरीज आते ही मेरे पास आया तो बेचारे सुन नहीं सकता था। तो इस तरीके से बहुत से पेशेंट जो है आते हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो है ये मतलब कि जो सुनाई की कुव्वत भी उनमें इजाफा करे, अल्लाह ताला जो उनको जो है वो तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए, और इस तरीके से जो है अल्लाह ताला जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रखे। तो वास्ता तो ये सिलसिला जो है जारी रखे। तो मैं बहुत मशहूर हूँ, इसको हम जारी रखेंगे। कल भी कोविड-19 के बारे में और इसके सोशल मीडिया का किरदार और दीगर चीज़ों के बारे में हम जो है वो जानेंगे। तो जिसकी वजह से आप लोग जो है ये समझ जाएंगे कि कोविड-19 को हम जो है सोशल मीडिया का किरदार क्या है और कैसे हम इसको जो है बेहतर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने पहले भी जो है नेगेटिव किरदार जो भी अदा किया है उसको हम पॉजिटिव किरदार जो है वो की तरफ ला सकते हैं। अभी जितनी भी बात मैंने की ये पॉजिटिव बातें हैं, तो अगर यही चीज़ें उस वक्त हमें मालूम होती तो हम जो है एक कौम को जो है इस राह से भी बचा सकते थे और इस राह से जो है वो निकाल भी सकते थे, और जितने भी ज़हनी अमराज है उनको हम दूर कर सकते थे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और मेरे दोस्तों का। रिसर्च के इसके बहुत ज़्यादा पहलू है, आप इसके ऊपर जो है जितनी मर्जी रिसर्च करवा लें, स्टूडेंट से करवा लें कोविड-19 के ऊपर, और इसी तरीके से इसकी जो है वो इजाफे के ऊपर जितनी मर्जी रिसर्च करा लें। ये जितनी भी हर्बल मेडिसिन जितनी भी मैंने बताई हैं, इनके ऊपर भी रिसर्च के बहुत ज़्यादा पहलू है। खास तौर पे जो है हमारे जिस्म के अंदर जब कुव्वत इजाफत हमारे टी सेल बी सेल का इजाफा होगा, CD4 के अंदर इजाफा होगा, IL जो है ल्यूकीन जो है इनके अंदर इजाफा होगा। ये तो फिर मुझे आगे जो है बहुत ज़्यादा जो है आगे इसकी इंफॉर्मेशन है जो हम मजीद इसको जारी रखेंगे। तो टाइम की कमी की वजह से मैं माजूर खा हूँ कि हम इसको अभी कल मजीद इसको जो है वो जारी रखेंगे और सोशल मीडिया किरदार को हम मजीद उजागर करेंगे और कोविड-19 के बारे में जो है और इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और दोस्तों और भाइयों का।